A very good morning to all my dear students. Welcome to one more class of Logic and Philosophy. आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन लॉजिक और मैं आज आप लोगों को शुरुआत से समझाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अपना लेक्चर इजी से इजी मेथड में आप लोगों को डिलीवर कर सकूं ताकि आप लोग इजीली वेन डायग्राम कर सकें. वेल, बिफोर स्टार्टिंग विथ वेन डायग्राम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलोसिज्म. Without the structure of a syllogism, without knowing the structure of a syllogism, without knowing the figure of a syllogism, it is not possible to draw a Venn diagram. So I think आप जो भी लॉजिक पढ़ रहे हैं आप लोग, मेरा प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोगों को अभी तक पता होगा कि स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चर और व्हाट इज़ द फिगर ऑफ ए सिलोसिज्म, बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो आज मैं आप लोगों को सिर्फ ब्रीफली समझाऊंगी कि स्ट्रक्चर ऑफ ए सिलोसिज्म क्या है. सो लेट अस टेक द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिलोसिज्म. Okay, this is an example of a syllogism. सबसे पहला point in the structure of a syllogism is that a syllogism must consist of three and only three proposition. 1, 2, 3. Second point is that a syllogism must consist of only three and three terms. Okay. See, man, mortal, king. King, sorry. These are the three terms. Man, mortal, king. Now, आप लोग सोच सकते हैं कि but in each premise there are two terms. Okay, but the thing is that when we observe carefully we see that each term is occurring twice. जितने भी यहाँ पे terms है वो दो दो बार occur हो रहे हैं prepositions में, इसीलिए हम लोग इनको सिर्फ एक ही मान कर चलेंगे. मतलब there are two mans but we will consider only one. सिर्फ एक मैन को कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो किंग भी दो बार है, मॉर्टल भी दो बार है और मैन भी दो बार है, बट हम लोग सिर्फ एक एक को कंसिडर करेंगे. दैट मीन्स मॉर्टल, मैन एंड किंग, दिस आर द थ्री टर्म्स. सो दिस इज द सेकंड रूल ऑफ अ सिलोसिज्म, दैट अ सिलोसिज्म मस्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री एंड ओनली थ्री टर्म्स. नाउ ये जो तीन टर्म है, इन तीन टर्म को तीन नाम दिया गया है. This is the middle term. Okay, this is the man is the middle term here. Why it is the middle term or what is the definition of the middle term? A middle term is a term which is present in both the premises but absent in the conclusion. Middle term जो है वो दोनों premise में present है but it is absent in the conclusion. That is called a middle term. तो जो भी term दोनों premise में present होगा और conclusion में absent होगा, that is known as middle term. Now the next term is called the major term. Okay, this is the middle term. This is the major term. Now what is a major term? A major term is the predicate of the conclusion. The predicate of the conclusion is called the major term. Another term is the minor term. The subject of the conclusion is called the minor term. Okay, the subject of the conclusion is called the minor term. I think आप लोगों को मेरे previous video से already पता है what is the subject and predicate. Subject मतलब about which we are talking and predicate मतलब the quality of the subject. So यहाँ पे we are talking about kings. So kings is the subject and mortal is the quality of the king. Therefore mortal is the predicate. ठीक है. So in any sentence about the thing
about which we are talking is called the subject, and what we are talking is called the predicate. So here now हम लोगों को तीनों terms पता चल गया है. The term which is present in both the premises but absent in the conclusion is called the middle term. The predicate of the conclusion is called the major term, and the subject of the conclusion is called the minor term. Now the premise, there are two premise. Syllogism consists of two premise and one conclusion. Conclusion is that which is derived from the premises, and premises are the given proposition. The given proposition are called the premises, and the conclusion is derived from the premises. So out of this two premise, this is called the major premise. Why it is called the major premise? Because the major term mortal is occurring here. That's why it is called the major premise. So the major premise is one in which the major term mortal or occurs. Okay. So जिस premise में major term होगा उस premise को major premise कहा जाता है. And this is the minor premise. Why it is called minor premise? Because the minor term is occurring here. In this syllogism, the minor term is kings. So kings is occurring in the second premise, that is called the minor premise. Okay, clear? So once again, in a syllogism, there are three proposition. Out of this three proposition, two are the given proposition known as premises, and one is the conclusion which is derived from the given proposition. Now, there are three terms in a syllogism. The term which is present in both the premises but absent in the conclusion is called the middle term. The predicate of the conclusion is called the major term, and the subject of the conclusion is called the minor term. Okay. The premise in which the major term occurs is called the major premise, and the premise in which the minor term occurs is called the minor premise. Okay, this is the structure of the syllogism. Now, what is the figure of the syllogism? The figure of the syllogism is determined by the position of the middle term. यहाँ पे जैसे middle term है, उस middle term के position के हिसाब से there are four figures in a syllogism. कैसे four figures? क्योंकि जो middle term का position है वो बदल सकता है. यहाँ पे जैसे in the major premise the middle term is the subject, and in the minor premise the middle term is the predicate. इस तरह से middle term predicate of the major premise भी हो सकता है और सब्जेक्ट ऑफ द माइनर प्रेमिस भी हो सकता है, या फिर प्रेडिकेट कुड बी द सब्जेक्ट ऑफ बोथ द प्रेमिस, या फिर मिडिल टर्म कुड बी द प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रेमिस. ओके, सो देयर आर फोर पॉसिबल वेज ऑफ द पोजिशन ऑफ द मिडिल टर्म. द मिडिल टर्म है वो चार पॉसिबल वेज से अपना पोजिशन चेंज कर सकता है, और उसी हिसाब से the figure of the syllogism is determined. So once again, what is the figure of the syllogism? The figure of the syllogism is determined by the position of the middle term. Okay, and there are four possible figures. And it is determined by the position of the middle term. First figure, second figure, third figure, fourth figure. First figure, second figure, third figure, fourth figure. So there are four figures, okay, according to the position of the middle term. So in the first figure, okay, these are the four figures. See, in the first figure, the middle term is the subject in major premise and predicate in minor premise. In the second figure, the middle term is predicate in both the premise.
In the third figure, the middle term is subject in both the premise, and in the fourth figure, the middle term is predicate in major premise and subject in minor premise. Now there is one more point. ये जो तीन terms हम लोगों ने अभी देखा, इन तीनों term का एक symbolic name है. M stand for middle term, S stand for minor term, and P stand for major term. ओके, सो इसी तरह से मैंने आप लोगों को ये चारों फिगर का डिस्क्रिप्शन दिया है. नाउ इस फिगर को याद करने के लिए हमें एक इजी मेथड मैं आप लोगों को समझाती हूँ. एक इजी मेथड बताती हूँ. अगर वो आप लोग समझ जाए तो ये फिगर आप लोग कभी अपने दिमाग से ये कभी आप भूलेंगे नहीं. ये भी मैंने एक अच्छे फ़िलासफ़र, एक बहुत अच्छे लॉजिशियन प्रोफेसर की वीडियो से ही मैंने ये देखा है. उन्होंने मुझे उनके वीडियो में उन्होंने समझाया था कि इस फिगर को कैसे याद रखें. तो आप लोग भी ध्यान से देखें ताकि इस फिगर को आप कभी भूलें ना. दैट इज़, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से ही पीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बनेगा तो ही पीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. नाउ दिस इज द मेजर प्रेमिस. व्हाट इज द माइनर प्रेमिस? सीता माता, सीता माता, माता सीता, माता सीता. Okay, so in this way we can remember the minor premise, and the conclusion is same, that is SP 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 SP. right? ये बहुत ही easy method है. वो सर ने मुझे, सर के वीडियो में मैंने देखा था, तो वहाँ से मैंने भी ये सीखा ताकि मैं ये फिगर ना भूलूं, और आप भी ये ट्रिक अपनाएं ताकि ये फिगर आप ना भूलें. ठीक है, क्लियर? आई होप स्ट्रक्चर एंड फिगर ऑफ द सिलोसिज्म इज क्लियर. नाउ लेट अस गो टू वेन डायग्राम. नाउ ये जो वेन डायग्राम है, देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ वेन डायग्राम जो आप लोगों को याद रखना है. अगर आप लोग वेन डायग्राम करना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो फिर ये रूल्स आप लोगों को याद करना पड़ेगा. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो देयर आर 4 proposition according to the quality and quantity, division of the quality and quantity, that is A, E, I, O. ठीक है. A, universal affirmative proposition, universal negative proposition, particular affirmative proposition, particular negative proposition. How to describe A proposition? All S is P. Okay, all S is P. So in Venn diagram there is one rule. All S is P is equal to SP bar. बार का मतलब P is absent from S, और P जो है is not there in S. So that is the meaning of bar. bar मतलब you have to eliminate it. You have to eliminate P from S. Clear? Is equal to 0. So this is the first rule of Venn diagram जो आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर ले. And this is the example. So this is the circle of S. This is the circle of P. S, P. And rule क्या है? A proposition S P bar. मैंने क्या बोला था? बार मतलब P को S से एलिमिनेट करना है, निकालना है. तो हम लोगों को मिला क्या? सिर्फ S. तो हम लोग डायग्राम किसको करेंगे? सिर्फ S को. ये देखो मैंने जैसे किया है, सिर्फ S को, और P को हम लोगों ने S से निकाल दिया. P का जो पोर्शन है जो इसमें आया है वो हम लोगों ने डायग्राम नहीं किया. क्लियर? प्लीज रिमेंबर दिस रूल्स प्रॉपरली. सेकेंड रूल इज E proposition. नो S is P. S P equals to 0. मतलब देयर इज नो वन प्रेजेंट इन SP. SP equals to 0. तो इसका डायग्राम क्या होगा? दिस इज द सर्कल ऑफ S, दिस इज द सर्कल ऑफ P, एंड दिस पोर्शन इज SP. सो इस पोर्शन को हम लोग डायग्राम करेंगे. SP को इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस पोर्शन को डायग्राम करना है. ठीक है. नाउ लेट अस गो टू द थर्ड रूल. I proposition. Sum S is P, universal affirmative proposition. SP not equal to 0. Not equal to 0 मतलब there must be someone present, some individual present. That is called not equal to 0. 0 नहीं है वो, वहाँ पे कोई present है.
नो इट इज़ नॉट ज़ीरो, इट इज़ नॉट ब्लैंक. सो इसका डायग्राम कैसा होगा? इफ़ इट इज़ एन आई प्रोपोजिशन देन दिस इज़ द डायग्राम. ये एस का सर्कल, ये पी का सर्कल, और एस पी मतलब ये पोर्शन जिसमें एस भी है पी भी है, और यहाँ पे एक क्रॉस देना है, मीन्स देयर इज समवन, इट इज़ नॉट ज़ीरो. Now number 4 is O proposition, particular negative proposition. Sum S is not P. S P bar, again S P bar not equal to 0. Again there must be someone, it is not equal to 0. So this is the diagram of O proposition. This is the circle of S, this is the circle of P. Okay. And how to diagram it? If it is an O proposition, then S P bar, P bar मतलब P को निकालना है S से. सो इस P को, इस पोर्शन को हम लोगों ने S से निकाल दिया, तो बचा क्या? सिर्फ S. सो इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब S में कोई है, S खाली नहीं है, ज़ीरो नहीं है, इसलिए S में एक क्रॉस साइन. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ O. ओके. सो अगर A प्रोपोजिशन है, सो दिस इज द डायग्राम. E प्रोपोजिशन है तो दिस वे यू हैव टू डायग्राम. I प्रोपोजिशन है तो दिस इज द डायग्राम. एंड O प्रोपोजिशन है तो दिस इज द डायग्राम. ओके. सो इस डायग्राम को मैं एक सिंपल तरह से आप लोगों को करके दिखाती हूँ. जनरली देयर आर 3 टर्म्स, राइट? मेजर प्रेमिस P, माइनर प्रेमिस S, एंड major term P, minor term S, and middle term M. Not premise, it's term. So let us draw. Suppose this is S, minor term. This is P, major term. And this is M, middle term. Generally इस तरह का Venn diagram होता है S, P, M. Okay. Now ये जो पोर्शन है इसमें सिर्फ S है. P और M के ऊपर बार होगा क्योंकि P और M यहाँ पे नहीं है. We have to eliminate P and M from here. This portion is only S. This portion S and P, there is no M. M के ऊपर बार मतलब there is no M. इस पोर्शन में only S and P, no M. यहाँ पे no S but only P, no M. Okay. यहाँ पे S is there, P is also there, and M is also there. All three are here. यहाँ पे S is there, P is not there, M is there. यहाँ पे S is not there. See, S is not there. S इसके बाहर है. S is not there. P is there and M is there. यहाँ पे S is not there. P is also not there. Only M. Okay. So see, these are the different portions of a Venn diagram. किस portion में कौन सा term आता है आप देख लीजिए. I think it will make you understand more clearly. Okay then. Now let us go to more rules of Venn diagram. 4 rules मैंने आप लोगों को already बता दिया है AEIO का. Now let us go to more rules. Now the next rule number 5. Diagram only 2 premise. Okay. Venn diagram में 3 premise है. क्वेश्चन में भी 3 premise आएगा जिसको आप लोग इस तरह से डायग्राम करोगे. 1 premise, 2 premise, 3 premise, इस तरह से डायग्राम करोगे. बट आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ 2 प्रेमिस को डायग्राम करना है, कंक्लूजन को डायग्राम नहीं करना है. ओके. दिस इज द नेक्स्ट. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट रूल. डायग्राम द यूनिवर्सल प्रेमिस फर्स्ट. अगर दोनों प्रेमिस में एक यूनिवर्सल प्रेमिस है और एक पार्टिकुलर प्रेमिस है तो यूनिवर्सल प्रेमिस को पहले डायग्राम करें. ठीक है. नेक्स्ट, ड्रॉ ओनली मेजर premise first if both the premises are universal. सपोज दोनों प्रेमिस ही यूनिवर्सल है तो फिर किसको डायग्राम करें? तो फिर हम लोग जो मेजर प्रेमिस है उसको पहले डायग्राम करेंगे. नेक्स्ट, इफ बोथ द प्रेमिस आर पार्टिकुलर, ड्रॉ द प्रेमिस विथ मेजर टर्म. अगेन सेम, अगर दोनों पार्टिकुलर है, यूनिवर्सल एक भी नहीं है, तो किसको पहले डायग्राम करें? तो हम जिस पार्टिकुलर प्रेमिस में मेजर टर्म होगा उसको हम लोग पहले डायग्राम करेंगे, मतलब द मेजर प्रेमिस.
ठीक है. Now the last rule is that after diagramming the two premises, we are to observe whether diagram of the premises includes the diagram of the conclusion or not. If it includes, it is valid. If not, then it is not valid. Okay, invalid, sorry. तो लास्ट जो रूल है वो ये है कि हम लोग वेन डायग्राम में सिर्फ प्रेमिसेस को डायग्राम करेंगे, कंक्लूजन को डायग्राम हम लोग नहीं करेंगे. आफ्टर डायग्रामिंग द प्रेमिसेस, अगर वो कंक्लूजन उस डायग्राम में इंक्लूड हुआ तो फिर वो वेन डायग्राम वैलिड होगा, और अगर इंक्लूड नहीं हुआ तो वो इनवैलिड होगा. ठीक है. सो दीज आर द रूल्स. प्लीज यू, मैं सामने से दिखाती हूँ, अच्छी तरह से देख ले. सो ये जो 9 रूल्स मैंने आप लोगों को बताया है, ये 9 रूल्स प्लीज़ आप लोग अच्छी तरह से माइंड में सेट कर ले. इससे जो वेन डायग्राम है वो इजीली कर पाएंगे आप लोग. ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई विथ एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग ट्राई करते हैं. ठीक है. पहला रूल्स तो आई थिंक आप सबको याद होगा. मैंने ए के लिए, ई के लिए, आई के लिए और ओ के लिए डायग्राम बताया है ये. ठीक है. सो इन डायग्राम के हेल्प से लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ वेन डायग्राम. सपोज द क्वेश्चन इज EIO2. ओके, EIO2, दिस इज द क्वेश्चन. इस वेन डायग्राम को सॉल्व करना है. EIO मतलब द आर्ग्यूमेंट एंड 2 मतलब द सेकेंड फिगर. ओके, फिगर मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया, द सेकेंड फिगर. ओके, सो इस हिसाब से आप लोगों को लिखना है द क्वेश्चन. एंड डू यू रिमेंबर द सेकेंड फिगर मैंने क्या बताया था? PM, प्राइम मिनिस्टर, सीता माता. ओके, प्राइम मिनिस्टर, सीता माता, SP. दिस इज द सेकेंड फिगर. ओके, उस हिसाब से लिखते हैं हम लोग. पहला मेजर प्रेमिस इज E. नो P इज M. सी PM. ठीक है. देन minor premise is I, universal affirmative proposition, that is sum S is M. See, SM. And what is the conclusion? Therefore O, universal negative proposition, sum S is not P. Sum S is SP. Okay, sum S is not P. So universal major premise is universal negative proposition. Minor premise is particular affirmative proposition, and the conclusion is particular negative proposition. And the figure is second figure. So this is the second figure. ठीक है. So according to the rule अगर हम लोग जाए तो E proposition मतलब PM equals to 0. See, E proposition मतलब SP equals to 0. SP यहाँ पे PM बन जा रहा है क्योंकि PM. ओके. I proposition मतलब SM not equals to 0. C I proposition मतलब SP not equal to 0. ये SP यहाँ पे क्या बन जा रहा है? SM. And the last O proposition मतलब SP not equals to 0. ओके. सी O proposition मैंने क्या बताया था? SP बार नॉट इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे क्या होगा? SP बार नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है. क्लियर? समझ में आया सबको? ओके. सो इस तरह से रूल के हिसाब से, इन रूल के हिसाब से आप लोगों को इस तरह से वेन डायग्राम का क्वेश्चन लिखना है. अभी हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाते हैं. ठीक है. सो वेन डायग्राम मैंने कैसे दिखाया था आप लोगों को?
इस तरह से आप लोगों को एक वेन डायग्राम बनाना है, 3 सर्कल्स, एक ओवरलैपिंग 3 सर्कल्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग. 1 circle, 2 circle, 3 circle. This we will consider as S, this we will consider as P, and this we will consider as M. So rule के हिसाब से अगर जाए तो फिर we have to diagram the universal proposition first or the universal premise first. So यहाँ पे E is the universal premise. So E को हम लोग पहले डायग्राम करेंगे. So E का क्या डायग्राम है? E का डायग्राम है एस पी इक्वल्स टू 0. मतलब एस पी के बीच का जो पोर्शन है इसको 0 करना है, इसको डायग्राम करना है. तो यहाँ पे एस ई का क्या निकल रहा है? पी एम इक्वल्स टू 0. ओके, विच पोर्शन इज पी एम? सी, दिस पोर्शन इज पी एम. यहाँ पे पी भी है और एम भी है. सो दिस पोर्शन इज पी एम. डोंट कंफ्यूज विथ एस पी एंड पी एम. मैंने यहाँ पे एस पी किया है, बट आप लोग जब डायग्राम करोगे तो वहाँ पे जो मेजर प्रेमिस मेजर टर्म माइनर टर्म होगा उसको दर्शाना है आप लोगों को. ओके, यहाँ पे एस पी है, सॉरी यहाँ पे एस पी है तो यहाँ पे पी एम है, दोनों सेम है. डायग्राम विल रिमेन सेम, डायग्राम विल रिमेन सेम. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. सो ये देखो, ये पोर्शन इस पोर्शन में हम लोगों का एम भी आ रहा है और पी भी आ रहा है, पी भी आ रहा है और एम भी आ रहा है. पी एम इक्वल्स टू 0, पी एम इक्वल्स टू 0. सो इसको डायग्राम करो. ठीक है, क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम लोगों ने फर्स्ट यूनिवर्सल प्रेमिस को डायग्राम किया, फिर हम लोग आई को डायग्राम करते हैं. आई का क्या था डायग्राम? दिस इज द डायग्राम ऑफ आई, दैट इज एस पी नॉट इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एस एम नॉट इक्वल्स टू 0, सेम थिंग ओनली. ठीक है, सो वेयर इज एस एम? इस डायग्राम में एस एम कौन कहाँ है? ये पोर्शन, एस एंड एम बोथ, ये पोर्शन. सो ओके, सो डायग्राम में क्या है? एस एम नॉट इक्वल टू 0, मतलब देयर इज सम इंडिविजुअल, सो इट इज नॉट इक्वल टू 0. सो यहाँ पे एक क्रॉस मार्क एस एम के बीच में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हुआ. ओके, अभी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो कंक्लूजन है वो इस डायग्राम में आया कि नहीं आया. सो कंक्लूजन है ओ प्रोपोजिशन. दिस इज द डायग्राम ऑफ ओ प्रोपोजिशन. एस पी बार नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब पी को एस से निकाल देना है, बार मतलब निकाल देना है, एलिमिनेट कर देना है. सो एस में इंडिविजुअल प्रेजेंट है बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉट 0, देयर इज समवन. सो एस को मार्क करना है. सो लेट्स सी, द लास्ट वन इज एस पी बार नॉट इक्वल्स टू 0. वेयर इज आवर एस पी बार? सी, दिस इज आवर एस पी बार. ओके, दिस पोर्शन इज एस पी बार. एस पी बार मतलब ये जो पी है, ये जो पी का पोर्शन एस में आ रहा है उसको निकाल देना है क्योंकि पी में बार है. ओके, पी के ऊपर बार है तो ये पी का पोर्शन निकाल देना है. तो हम लोगों ने ये पी का पोर्शन निकाल दिया तो एस का पोर्शन ये रहा, दिस इज द एस पोर्शन. सो एस पोर्शन में नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं है, कोई है मतलब क्रॉस साइन, राइट? तो फिर हम लोगों का जो आर्ग्यूमेंट है इट इज़ वैलिड. ओके, इट इज़ वैलिड. सो व्हाट इज द आंसर? अंडरस्टैंड, इट इज़ वैलिड क्योंकि हम लोग का जो कंक्लूजन है वो डायग्राम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ओके, सो लेट अस राइट द आंसर. इट इज valid as the conclusion is included in the premises, and the answer is FESTINO, festino. This is the answer, this is the diagram. ठीक है, clear? Okay, in our next video we will try to solve some more examples. होप द वीडियो इज़ क्लियर. कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे. ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.